Hello and welcome. I am Dr. Anil Joshi. Welcome you to my series Iconology and Temple Architecture Perspectives. This is regarding Indian art, culture, and heritage. In the contest, we are going to visit today Sanchi, that is at Madhya Pradesh near Bhopal, and we are going to study the stupa here. We are going to see it in detail, and we are going to get information from a authorized person appointed by government and ASI who is authentic in giving the information. So we'll be getting all this information from him. Let's welcome him and let's get going. First, there is some exterior. As far as the exterior is concerned, these photographs are taken by me. Now, Sanchi is a Buddhist monument center. It is near Bhopal and it is a World Heritage Site and is maintained by Archaeological Survey of India. They have done excellent arrangement to obtain the information. You can either get an audio guide by scanning a QR code, or they are available which are government approved, ASI approved. So whatever information they give, we take it as authentic. Now let's get going first to the introductory part. Now Sanchi Stupa is a Buddhist complex famous for its great stupa on a hilltop at Sanchi town in Raisen district of the Madhya Pradesh. It is near Bhopal. It is located about 23 kilometers from Raisen town, and it is near Bhopal also, that is around 46 kilometers. The district place around or near is the Raisen, which is the district place which is 23 kilometers from here, and it is on the northeast of the Bhopal. The Great Stupa at Sanchi is one of the oldest stone structure in India and an important monument of Indian architecture, not for us also but for the entire world. We are getting a lot of visitor here, especially from full world and that of the Buddhist countries. It was originally commissioned by Mayura Emperor Ashoka in 3rd century BCE, that is before Common Era. So right now if you calculate 2000 plus 300, that is 2334 years, almost it is that much old. Now the nucleus was a simple hemispheric brick structure which was built by Samrat Ashoka, and it had relics of Buddha. The stupa at Sanchi, built during the Mayuran period, was made up of bricks that was simple, smaller, which was subsequently modified and made up of the stones. Today what structure you are seeing is a modified version. It is stronger and sturdier. It was crowned by a chitra, that is a parasol-like structure symbolizing high rank, which was intended to honor and shelter the relics. So that was the basic aim of this stupa. The original construction work of the stupa was overseen by Ashoka, whose wife Devi, the daughter of a merchant, is nearby Vidisha. So the wife of Samrat Ashok was belonging to this area, that is Vidisha. Sanchi was also her birthplace, who's Samrat Ashoka's wife, and was a place of their marriage. So their marriage has taken place here. In the 1st century BCE, 4 elaborated carved toranas, that is ornated gateways, and a protracting railing encircling the entire structure were added. So this was first it was with the bricks, then this was a second addition. The monument at Sanchi today comprises a series of Buddhist monuments starting from the Mayuran Empire period, that is the 3rd century BCE, continuing with its construction work during the Gupta period, that is the 5th century, and ending around 12th century CE. So there are a lot of stages in which it has been constructed and evolved. It is probably the best preserved group of Buddhist monuments in India. That's why it is honored World Heritage Site, that is UNESCO.
The oldest and also the largest monument is at Sanchi. It is the Great Stupa and is also called as Stup number 1, initially built under the Mayuras, as already told to you, Mayuras Empire, and then it was subsequently repaired. During the following centuries, especially under the Shringas and the Satavahanas, the great stupa was enlarged and decorated with gates, railings, and there were also addition of smaller stupas around this in its vicinity, especially stupa number 2 and stupa number 3, which you can very well appreciate from the photographs. Simultaneously, various temple structures were also built down the Gupta Empire period and later on. Altogether, Sanchi encompasses most of the evolution of the ancient Indian architecture and ancient Buddhist architecture in India, from the early stages of Buddhism and its first artistic expression to decline the religion. It is before it could decline in the subcontinental region. It was their glorious period. Now let's take the photographs. Now we are in the campus, we have parked our car and we are walking inside. As you walk inside, you'll find a clean, peaceful premises, absolutely clean. You'll start feeling a peace of mind over here. There is a canteen where you can have light refreshments if you want, but it is also in a natural environment. Now look at this. It is the surrounding areas. Now this is the Bhojan Sthal, where you can take your lunch. There are good trees, good shadows, and you can also love the surrounding and the atmosphere. Look at this, very beautiful premises, very calm, very quiet. And once you start walking from the parking area, from the canteen, now you are going towards the main stupa, and this is a holy tree. They have mentioned who has planted it, when it was planted, and it is taken really nice care by everybody because it is a holy tree. It is important for everybody. Yes, that's why the name of the person who has planted it is written, and also they have taken good care of it. But one thing is very assured, is a very clean, very decent premises. I went there in a rainy season, so just a shower of rain has passed, but now it's absolutely clean, green and beautiful. Look at this. This is the entrance from which you have to pass. Now once you pass the gate, you can see the stupi, a larger one and the smaller ones also. So you will have to walk down straight towards it. This is the big way, less than half a kilometer. In the way, you will find another monument. Now, what is it? It is the Chetiagiri Vihar. Now, who is the having patronage of it? That is the Sri Lankan organizations. So you will find here that is Chetiagiri Vihar, and you can obviously pray here by Namo Buddhaya. But this was a property of Ceylon people, that is Sri Lankan people. Now we'll see all this videography. It is extensively done, it is extensively covered, and you will hear a explanation or the description of it by the person who is authorized to give the information over here. This information as well you can have it by scanning a QR code, but we have preferred to have a guide because we could have a interaction with him. We can ask him our doubts and he can explain them. So let's get going and visit the great monument, which is a UNESCO site also and important for a full world and those who are peace lovers.
तो सर आज का जो हमारा टूर है इसमें 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD तक जितना भी यहाँ पे मोनेस्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन हुआ है वो अलग अलग डायनेस्टियों से हुआ है। तो BC 3rd सेंचुरी जब भारत के महान सम्राट अशोक यहाँ पे स्तूपा 1 बनाते हैं और अशोक पिलर बनाते हैं, मोनेस्ट्री बनाते हैं, चैत्य बनाते हैं, फिर इसके बाद ये चलता रहा पूरा 12 AD तक। फिर 1314 के बाद सांची भी वही हुआ जैसे दूसरे हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स जैसे अजंता, एलोरा, खजुराहो, इनकी खोज हुई है फिर ब्रिटिश काल में। तो सांची को जनरल टेलर ने 1818 AD में रीडिस्कवर किया और यहाँ की जो ऑथेंटिक, जो यहाँ की वास्तविक हिस्ट्री को फिर से उन्होंने क्लियर किया। कैसे सर? जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ कार्व किया हुआ है, जो ओपन में है और जो कुछ एक्सकेवेशन करके निकाला है, और उसी से समय समय पे एक्सकेवेशन कंजर्वेशन होते रहते हैं क्योंकि सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। और सांची स्तूप जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और स्तूपों में सांची स्तूप बेस्ट वेल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट माना जाता है। सर जी आप देखिए सांची के जो स्तूपा 1 है, स्तूपा 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें से स्तूपा 1 ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देख रहे हैं। सांची की जो गेटवेज, सर जी गेट पे तो क्या है, पूरे बुद्ध के लाइफ का एक टॉप टू बॉटम सर, ये जो कॉलम है जितनी भी जगह है उतनी ही कॉलम में स्टोरी दिखेगी आपको, और ये 100 BC का बना हुआ है सर आपको। और हमको सर ये है कि अपने देश, अपनी संस्कृति कैसे खड़ी हुई है, अपने धर्म कैसे खड़े हुए हैं, मोन्यूमेंट से। सर मोन्यूमेंट के बनाने की जो आर्किटेक्चर स्टाइल होती है ना सर, वो होती है धर्म के हिसाब से, वो होती है रूलर्स के हिसाब से, और वो होती है रीजन के हिसाब से। ट्रिपल R फॉर रिलीजन, R फॉर रूलर, R फॉर रीजनल। तो सांची वर्ल्ड से लोग आते हैं स्तूपों के लिए, और सर हम इंडिया के हर कोने से यहाँ आपको विजिटर मिलेंगे। आज जैसे सर सुबह हमारे केरल से विवेकानंद का टूर आया था, फिर अभी जो है ना एक महाराष्ट्र से आया था, और अभी सर काफी बड़ा ग्रुप हमें आए हुए सिलोन से लगभग 100 लोगों का ग्रुप भी अंदर मिलेगा हमें। तो आज तो हम मानसून सीजन में विजिट कर रहे हैं, तो सांची का और यहाँ के जो टूरिस्ट सीजन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो है ही, लेकिन मानसून सीजन का ही एक अपनी अलग ही जो है ना फीलिंग है यहाँ की। सांची से हमें क्या मिला? हमें सांची से हमारी संस्कृति, हमारा एंशिएंट बिल्डिंग आर्किटेक्चर, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ से गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं का, और इस जगह से भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश हमारे देश के हृदय में बसता है, और उसमें विदिशा, और विदिशा से ही हमारा व्यापार था, और सबसे बड़ा सांची स्तूप बनने में विदिशा का ही रोल है। और सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा वासिनी, नगर श्रेष्ठी की बेटी देवी का भी सबसे बड़ा रोल है। उन्हीं के संरक्षण में स्तूप बने, और बुद्ध देव को यहाँ लाने वाले भारत के महान सम्राट अशोक थे, और वो भी उनको एक अस्थि और एक प्रतीक के रूप में लेके आए हैं। और यहाँ बुद्ध कभी नहीं आए अपने जीवन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 300 BC के मोन्यूमेंट की, और अब हम चलते हैं वहीं जहाँ गौतम बुद्ध के पिता महाराज शुद्धोधन राज्य करते थे, जो कि उनका महल कपिलवस्तु, जो कि आपको सामने दिखाई देगा। आइए सर हम उस महल को देखते हैं जिस महल में सिद्धार्थ बड़े हुए थे। ये वो महल है सर जिसमें सिद्धार्थ बचपन से बड़े हुए थे, और ऐसे ही समर, विंटर, मानसून पैलेस हर सीजन के पिताजी महाराज शुद्धोधन ने अपने प्रिय राजकुमार सिद्धार्थ को दिए थे। तो इस महल से सिद्धार्थ को हम निकलते हुए देख रहे हैं सर। नगर में, पब्लिक में, नगर से पैलेस से बाहर पब्लिक उनको नमस्कार करती है। उनके प्रिय घोड़े कंठक हैं, प्रिय सारथी छंदक हैं, और उनके हाथ में भगवान बुद्ध के प्रतीक के तौर पे छत्र लगा हुआ है। तो हम इनमें तोरण द्वारों में भगवान बुद्ध को, तथागत को अलग अलग सिंबल के रूप में देखने वाले हैं। बोधि ट्री जो हम देख रहे हैं ना सामने सर, यही भगवान बुद्ध की उपस्थिति है इस ग्रुप के अंदर। और एक ग्रुप में कौन है? कपिलवस्तु के शाक्य। और एक इतिहास है सर, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि कपिलवस्तु में शाक्य वंश के राजा महाराज शुद्धोधन राज करते थे, और वो अपनी पत्नी देवी के साथ, महामाया के साथ। तो महाराज शुद्धोधन
जो है उनकी पत्नी महादेवी और उनकी एक और पत्नी का नाम आता है महाप्रजापति गौतमी का। तो यहाँ जो हम बात करते हैं कि कपिलवस्तु शाक्य वंश में सिद्धार्थ ने जन्म लिया जो है ना, जो कि लगभग 29 ईयर एज में अपना महल छोड़ के 6 ईयर इन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए लिया और लगभग इन्होंने 45 ईयर बुद्ध बन के जगह जगह यूपी बिहार के जो हमारे आज के क्षेत्र हैं वो, जैसे हम बात करते हैं कि लुम्बिनी का, बोध गया का, सारनाथ का, कुशीनगर का, वैशाली का, राजगृह का, शंकीसा, ये उत्तर प्रदेश बिहार में आते हैं सभी क्षेत्र जहाँ भगवान बुद्ध का पूरा जीवन निकला। तो हम जो बात कर रहे हैं सर कि जब सिद्धार्थ बुद्ध बने थे तो महाबोधि ट्री के नीचे, और इसी ट्री के नीचे महात्मा जो तथागत बुद्ध हैं उनको सुजाता ने खीर खिलाई थी बोध गया में। तो उस समय जो है ना भगवान बुद्ध का जब ज्ञान हुआ था तो उन्होंने सारनाथ में जाके अपने 5 प्रिय पंच भिक्षुओं को डियर पार्क में पहला धम्म उपदेश दिया था। लेकिन लगभग 1 बरस होने के बाद पहुंचे थे वो कपिलवस्तु में शाक्यों के पास। तो कपिलवस्तु के शाक्य पूरे सभा में सिद्धार्थ बैठे हैं और ऐसा लगता है सबको कि भाई हमारा ही शाक्य कुमार आज बुद्ध बन गया है। तो सब लोग एक्साइटेड थे कि कब हमारे बीच में होंगे। तो आज वो कपिलवस्तु के शाक्यों के बीच में है। अब उन्हीं के ज्ञान के कारण लोगों में ये बातें भी चल रही हैं कि सिद्धार्थ बुद्ध बन गए हैं। तो इन दोनों में क्या बातें चल रही हैं ये बंदा भी सुन रहा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। उससे जी जब ये सुन भी रहे हैं, ये कुछ लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। उससे जी जब कोई इंसान जब झुक के बात करेगा तो यहाँ कुशन दब जाएगा, वहाँ उठ जाएगा। देख रहे हैं सर आप जो है ना। अच्छा, हम 2000 साल पहले ये जो बैठे हुए ऊंचे आसन पे भगवान बुद्ध को देख रहे हैं चिन्ह के रूप में, 2000 साल पहले लोगों के चेहरे, उनकी पगड़ी, उनके ब्रेसलेट, उनकी धोती, उनकी हेल्थ, उनकी प्रॉस्पेरिटी, हम अतीत को 2000 साल के पहले के हमारे जीवन को, हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को आज भी सामने देख पा रहे हैं सर। पत्थर के लेक है सर, ऐसे ही नहीं मिटते। और एक ही सिंगल पत्थर में बना हुआ है जिसको कहते हैं हम मोनोलिथिक स्टोन जो है ना। और सर बनवाने वाले चारों दिशाओं के 4 तोरण आंध्र प्रदेश के जो रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश ने 4 तोरण द्वारों का निर्माण किया है। और सांची के 4 तोरण द्वार बहुत अच्छी वेरी इंटैक्ट कंडीशन में है सर। बाकी सर कार्विंग का तो हमें मध्य प्रदेश के भरहुत से भी मिलता है और हमें आंध्रा अमरावती से भी कार्विंग मिलता है सर। तो हमने देखा कि सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिस्सा होने में सबसे बड़ा रोल इन तोरण द्वार का है सर जी। एक कहानी ये थी कि जिस रास्ते भगवान अपनी माता महामाया देवी को उपदेश दे के वापस आए थे तो वो सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती दिख रही हैं। इसको कहते हैं सर हम मिरेकल ऑफ संकाशिया, जहां वो अपनी माँ को महादेवी को उपदेश दे के वापस आए थे। देख रहे हैं सर, श्रावस्ती से जाना, संकीसा में वापस आना। तो इसमें हम तथागत को, भगवान बुद्ध को बोधिट्री से ऊपर भी देख रहे हैं, देवलोक से वापस आए तो हम उनको पृथ्वी में भी देख रहे हैं। और नीचे बड़ा स्टोन पृथ्वी का सिंबल है, ये भूदेवी है नीचे से जी। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि कुछ पैनल इसके स्टोरी हमें नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि स्टोरी तो टॉप टू बॉटम पूरे में थी। काफ़ी समय से जी सांची बड़े घने जंगल में था, बड़ा वीराना था 500-600 साल का। तो जब धरोहर को नहीं मेंटेन करेंगे तो उसकी क्षति होने लगेगी, नेचुरली भी होगी और जिन लोगों को नहीं होगा उसका ज्ञान उनके द्वारा भी होगी। देश काल और परिस्थिति है सर। तो ये 12वीं सदी से 18 तक तो वीराना था सर। अंग्रेजों का सर एक बात तो है सर, हमारे देश में अंग्रेजों के राज्य में हमारी जो एंशिएंट धरोहर हैं उनका तो संरक्षण और बड़े बड़े और छोटे जिस लेवल के जहाँ ज़रूरत होती थी वैसे म्यूजियम्स भी बनाए गए। आज अपना कलकत्ता का म्यूजियम देखो, दिल्ली का म्यूजियम देखो, मथुरा का म्यूजियम देखो, छोटे छोटे हर एक मोनूमेंट के आसपास म्यूजियम उसी का कलेक्शन होता है। तो आज ब्रिटिश म्यूजियम में देश दुनिया का है। तो अंग्रेज अगर यहाँ पे कलेक्शन किए हैं तो हर जगह उसको व्यवस्थित रखा है, जो लगने वाला था वो लगाया। और फिर इसके बाद भारतीय पुरातत्व का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना के हैं और हमारे जो डिपार्टमेंट द्वारा एक तो वेल मेंटेन होती है ये धरोहर। सर जी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, आइए सर, भगवान बुद्ध की इसमें चरण पादुका देख रहे हैं सर आप, फुटप्रिंट है। वो कहते हैं ना सर धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, मेथड है समाज में परिवर्तन लाने की, शिक्षा एक चक्र। और भगवान बुद्ध तो एक बड़े रिसर्चर थे और सर उस सदी के तो वो एक समय की बात थी सर। उस क्षेत्र में
भगवान बुद्ध का जन्म होना और अपनी संस्कृति और अपने देश में जन्म होना एक बड़े गौरव की बात थी सर। युद्ध के बीच में शांति स्थापित करना सर, ऐसा नहीं था कि हमारे राजा कोई कमजोर थे तो युद्ध नहीं कर पाते थे, हमारे राजा बहुत लड़ाके थे। लेकिन जब वो उन्होंने रिजल्ट देखा सर, कोई भी युद्ध हो उसके बाद क्या होता है, युद्ध में भी उसके बाद हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हमेशा नुकसान होता है। तो भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति का मार्ग दिया और उसी शांति के मार्ग में चंड अशोक से धर्म अशोक बन के हमारे भारत के महान सम्राट ने लगभग हम 5 देशों की जो बात करते हैं, हमारे जितने भी नेवर पड़ोसी देश हैं उनमें सब में मोनेस्ट्रियाँ बनवाई थी, क्योंकि उस समय हमारे ज़्यादातर 16 महान जनपदों को तो सम्राट ने कवर किया था धर्म प्रचार के लिए। उनको पता था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र से, मगध, काशी और यहाँ के क्षेत्र से हमें जगह जगह अगर मोनेस्ट्रियाँ स्थापित हो जाएंगी तो लोगों को बुद्ध की विचारधारा से जोड़ना और अपनी धर्म और संस्कृति का नगर नगर, गांव गांव तक स्थापित हो जाएगी। तो सम्राट अशोक ने लगभग स्तूपों का, विहारों का, जो कि मोनेस्ट्री जिनको हम कहते हैं ना, चैत्य और स्तंभों का टोटल 84,000 बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट का तो निर्माण भारत के महान सम्राट अशोक ने करवाया था। तो हम तो देख रहे हैं कि अपनी ये धरोहर बिल्डिंग मॉन्यूमेंट ही नहीं खड़े हैं, अपना धर्म खड़ा किया है उन्होंने सर। तो भगवान बुद्ध के कहते ना कि सर, जिसकी हील में व्हील हो तो वो रुकता कम और घूमता ज़्यादा है, क्योंकि भगवान तथागत कहते थे कि बहता हुआ पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, रनिंग वाटर ही क्लीन होता है। तो लाइफ में मन से तो स्थायी रहना है, लेकिन तन से घूमना जरूरी है। वो कहते हैं उस जमाने में कि हमारी जो शिक्षाएं हैं, राजा है तो राजा के रूप में फॉलो करें और प्रजा है तो प्रजा के रूप में। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान बुद्ध की शिक्षा देव, दानव, पशु, पक्षी, व्यापारी, राजा सब फॉलो करते थे। से जी जिस राजा की प्रजा है, अगर राजा चाहे तो बड़े बड़े वृक्षों का पौधारोपण करवाए और अपनी प्रकृति को बढ़ाए, और राजा चाहे तो पशुओं का जो है ना शिकार भी करवाए। राजा की प्रजा है तो वो कैसे काम करेगा। तो ये भगवान की बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले तो किसी पेड़ के नीचे होती थी, जिसको हम ट्री चैत्य कहते थे। बाद में हमने चैत्य में तो सर आप कभी महाराष्ट्र में देखिए, अजंता जाइए, एलोरा जाइए, कार्ला जाइए, कन्हेरी जाइए, भाजा, जहाँ भी जाएंगे हम सबसे पहले गुफाओं में हमने चैत्य स्थापित किए हैं। तो सर जी आज देखिए ये हमारे भंते जी है, श्रीलंका से और सांची में है, और ये सभी इनके आए हुए हमारे श्रीलंका के भक्त लोग हैं, ये सब ये अपने तीर्थ यात्री हैं, और ये पूरा का पूरा बुद्धिस्ट सेक्टर करते हैं सर। ये 2-4 दिन के लिए नहीं आते, जब तक इनका पूरा टूर ना हो जाए, बोध गया का, लुम्बिनी का, सांची का, सारनाथ का, और हाँ, और समय रहता तो अमरावती भी जाते हैं और अजंता भी जाते हैं। तो ये लगभग 12 से 15 दिन का टूर जो है ना होता है, लगभग 1 वीक तो कंपलसरी है। तो बड़ी आस्था से आते हैं। और सर एक बात है, हमारी संस्कृति हमें पूरी दुनिया में गौरवान्वित करती है। सर हमारा कितना बड़ा टूरिज्म उद्योग है। आज अपने टूरिज्म का सर पार्ट हम कहते हैं कि अकेले मोन्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि मोन्यूमेंट के ही कारण और दूसरे पर्यटन क्षेत्र भी साथ में हो जाते हैं सर। ऐसा है सर, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास नदियां हैं, हर प्रकार का टूरिज्म है सर हमारे यहाँ, है ना, आते हैं। लेकिन मोन्यूमेंट से सबका जुड़ाव है किसी न किसी से। तो इसलिए ताकि कोई धर्म के लिए आता है, कोई इतिहास के लिए आता है, कोई संस्कृति के लिए आता है, कोई आर्किटेक्चर के लिए, सब कुछ हो जाता है पूरा यहाँ। सर जी अगर हम बात करें हमारे समाज की और हमारे जीवन में कितना उस समय का उच्च कोटि का पहनावा था हमारा, कहते ना कि भाई ये तो हमारे जो मोस्टली गर्ल्स जैसे हम होते हैं, लेडीज होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने जाते हैं, नया दिन, नई वेशभूषा, नई ज्वेलरी। अगर 2000 साल पहले सर आप एक भी इनकी डिजाइन उठा के देख लो, कोई भी एक डिजाइन अगर आपको बराबर एक जैसा रिपीट मिल जाए तो सर बताना। और ये सब बीसी का बना है, क्योंकि 1 स्टोन है, इसमें कोई नया एडिशन हो ही नहीं सकता। और सर जी आज भी इतनी क्लियरिटी देखिए सर, आप नीचे से ऊपर तक कोई भी डिजाइन, सिर्फ खाली ज्वेलरी की बात कर रहे हैं सर। और ये पत्थर है सैंडस्टोन, अगर आसानी से कार्व होता है तो इसमें इरोजन और वेदरिंग के चांस ही उतने होते हैं। ये तो हम इरोजन वेदरिंग की बात देख रहे हैं सर। सर कितने दिन चलती हैं बाहरी दीवारें कोई भी बिल्डिंग की हो सर, और 10, 20, 25, 50 साल तक ना देखें सर। हम अपने ही पूर्वजों के गांव छोड़ के किसी शहर में बस जाते हैं, नहीं जाते देखने तो उन मकानों की क्या हालत होती है सर। ये देख रहे हैं सर आप, बीसी का बना हुआ है। सिर्फ समय समय पे ESI अपना जितनी जरूरत के हिसाब से केमिकल कंजर्वेशन की होती उतना, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंशिएंट मोन्यूमेंट में नया तो एडिशन पॉसिबल है ही नहीं। हम अपनी धरोहर को अपने ऐतिहासिक वैल्यू के तौर पे बचा के रखेंगे। सर जी सबसे ऊपर देखो, ये भगवान बुद्ध का सिर है, जो कि एक छत्र दिखाई दे रहा है।
सम्मान में छत्र लगा हुआ है, ये भगवान बुद्ध का सिर हो गया। ये त्रिरत्न में जो आप देख रहे हैं ना सर, ये उनके दो बाजू है, ये लोटस बीच में उनका हृदय है और नीचे उनके पाँव है। तो इनको सिर से लेके पाँव तक पूरे बॉडी दिखाई गई है भगवान बुद्ध की। हम इनको लाठी बुद्धा कहते हैं सर। तो सर इनमें तोरण द्वार बने हैं बीसी में, और जो ईसा के पहले का हमारा धर्म है उसको हम कहते हैं बुद्धिज्म, थेरवाद। जो थेरवाद बुद्धिज्म होता है उसमें कहीं भी भगवान बुद्ध का कोई फेस नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ उनको चिन्हों के रूप में, सिंबल के रूप में दिखाते हैं, और वही सिंबल होते हैं जो उनके जीवन से और उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे सर आइए सर, धर्म चक्र उनके प्रथम उपदेश का है सर। दिस इज हाँ सीन्स ऑफ द फैमिली लाइफ, रूलर्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे। तो ऐसे ही कहानी है सर कि हमारे महान सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर हुआ करते थे। देवी से मैरिज किया था उन्होंने, एक बिजनेसमैन की बेटी विदुषी, और देवी से बच्चे भी हुए थे महेंद्र और संघमित्रा। सम्राट ने समय दिया अपनी फैमिली के लिए, सम्राट ने समय दिया अपने प्रोफेशन के लिए, समय दिया अपने प्रेयर के लिए, और समय दिया जंगल में जाके, उन मोनेस्ट्रियों में जाके उनकी शिक्षा सुनने के लिए। हमारे रूलर्स समय दिया ग्रुप में इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करने के लिए। अब सर हम आते हैं कि मोनेस्ट्रियों की बनाने की स्टाइल देखो आप सर। कभी आप अजंता में जाइए, अगर आपको कार्विंग बहुत एक जैसी ना दिखे तो बहुत सिमिलर दिखाई देगी, क्योंकि सतवाहन चले थे आंध्रा से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से मालवा मध्य प्रदेश, बहुत कॉमन दिखेगी आपको। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि श्रावस्ती के जैतवन विहार में भगवान बुद्ध ने बरसात के 4 महीने निकाले हैं, और कहते हैं कि उन मनुष्यों को बनने के लिए जो व्यापारी थे अनाथ पिंडक, वो राजा से मुद्राओं के धन के बदले में जगह प्राप्त की थी उन्होंने, जहां भगवान बुद्ध 4 महीने रुकने गए और 24 महीने वहां के राजा ने फिर नहीं जाने दिया। तो वो अनाथ पिंडक नाम के व्यापारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं सर। नीचे जो है ना मुद्राएं बिछी हुई हैं वहाँ पे, है ना। तो भगवान मूलगंध कुटी, कौशाम्बी कुटी, करोड़ी कुटी में रुके थे। तो ये हो गया जैतवन विहार का, और वहाँ हो गया श्रावस्ती में। ये सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं, और यहीं से भगवान बुद्ध को ढोल नगाड़े के साथ विदाई देते हैं देवलोक माँ को मिलने के जाने के लिए। और यहाँ सम्राट अशोक से रिलेटेड है, इसलिए इसमें सिंबल नहीं, खुद बैठे हुए हैं वो। देख रहे हैं सर, 2000 साल पहले महल बनाना, राजा का निकलना, और जब राजा फैमिली को समय देता है तो इतनी सेना लेके नहीं जाता, जब वो सेना के साथ निकलता है तो फैमिली लेके नहीं जाता। देख रहे हैं सर आप, उस समय ये कल्चर था, कितना मल्टी स्टोरी पैलेस। और सर जी हम अपने लोगों की बात करें तो इनमें सिर में पगड़ी, कानों में कुंडल, हाथों में कड़ी और धोती पहने हुए हैं। और अगर हम विदेशियों की बात करें सर, सामने वहां देख रहे हैं आप, जिसपे 3 छत्र दिखाई देंगे, ट्रिपल अम्ब्रेला, और उनमें यष्टि और रेलिंग हर्मिका, और ये अंडाकार डोम, और बीच में बेदी, और नीचे भूवेदिका, और सामने लगा हुआ तोरण। मतलब हम सामने देख रहे हैं, मतलब सांची स्तूप को ही हम देख रहे हैं। लेकिन इनके जो वेशभूषा देखिए सर, इनकी ड्रेस स्टाइल, कर्ली हेयर देख रहे हैं सर आप उनकी, देख रहे हैं उनके स्कर्ट और लॉन्ग बूट, ये पहनावे से ग्रीक, और ग्रीक से हमारा मेसोडोनिया तक संबंध था सर। अलेक्जेंडर के आने से और जाने के बाद हमारे जो संबंध स्थापित हुए थे, सेल्यूकस निकेटर और निकेटर की बेटी का मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य से होने का इतिहास। और अगर हम ज़्यादा इतिहास की बात ना करें तो हम काफ़ी दूर नहीं जाना चाहते, मगध और तक्षशिला हम जाना चाहते यहाँ से ओनली 7 किलोमीटर। हमारा फेमस व्यापारियों का नगर वैश्यनगर, जिसको आज हम विदिशा कहते हैं, और विदिशा में वो पिलर आज भी खड़ा हुआ है, जिसको हम हेलियोडोरस का पिलर इतिहास में कहते हैं, और खाम बाबा लोकल के लोग कहते हैं। आज भी लिखा हुआ है उसके ऊपर हेलियोडोरस का तक्षशिला से विदिशा तक विजिट का पूरा विवरण है कि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मैंने वासुदेव को फॉलो किया, मैंने गरुड़ स्तंभ बनाया। तो आज भी विदिशा में लोग खाम बाबा के नाम से उनको प्रेयर करते हैं। देख रहे हैं जी। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि अगर इसमें ग्रीक संस्कृति के लोग हैं, बात कर रहे हैं सेकंड पैनल की, बुद्ध का विजिट हुआ वैशाली। देखो बुद्ध तो अपने लाइफ में विहारी करते थे, वर्षावास 4 मंथ्स रुकना है, और विंटर और समर में 8 मंथ हमेशा एक नई जगह पे जाके उपदेश देना होता है।
तो जब वो वैशाली पहुंचे तो वैशाली में उनका स्वागत किया गया रूलर्स द्वारा। ये दोनों मंकी थे यहाँ पे, ये भगवान बुद्ध के बड़े भक्त हो जाते हैं और भगवान बुद्ध की भक्ति से खुश होके ये फॉरेस्ट से प्रिय चीज हनी लेके आते हैं कटोरे में और अपनी प्रिय चीज भगवान को देना चाहते हैं। और भगवान ने जब स्वीकार की तो पीछे वाले मंकी के डांस करते हुए आप उनको देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं आप, मतलब खुशी खुशी भगवान बुद्ध ने उनकी हनी को स्वीकार किया। तो वैशाली में पहुंचने पे वैशाली की नगर बधू आम्रपाली का भी भगवान बुद्ध की जो है ना संग में आना और भी महिलाओं का वहाँ पे उद्धार हुआ और महिलाओं ने भी भगवान बुद्ध को उस समय उनकी शिक्षा को फॉलो किया। कपिलवस्तु में जब भगवान बुद्ध का पहुंचना हुआ तो नगर के बाहर माता गौतमी कहती है, महाराज मेरा बेटा बुद्ध बन के आया है, तो नगर के बाहर में स्वागत के लिए चलते हैं। तो महिला को हमेशा आगे रखा है सर, देख रहे हैं आप। यहाँ पे ये जो हाथी चलाने वाली भी महौत महिला ही है सर ऊपर। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि महिला का स्थान विशेष है उस समय। माता गौतमी आगे खड़ी है, पिता शुद्धोधन पीछे खड़े हुए हैं, इनके स्टाफ में अटेंडेंट हैं, ऊपर से फर्स लेके गार्डनिंग लेके जो मालाएं लेके ऊपर से गंधर्व भी आए हुए हैं यहाँ पे। ये सब भगवान बुद्ध के पास है यहाँ पे। तो भगवान बुद्ध का प्रतीक महाबोधि वृक्ष है। और नीचे तो सर आने वाले अतिथि का स्वागत करने के लिए परमानेंट या तो एक एक फूल देगा आने वाले अतिथि को या मालाओं से उनका वेलकम करेगा। तो इस गेट को कहते हम तोरण द्वार। और तोरण द्वार बने चारों दिशाओं में। तो सर जी यहाँ जो हम बात करते हैं कि ये जो पिलर हैं इन पे लिखावट है। और सर जी यहाँ पे भी नहीं, आप बैक साइड में देखिए सर, जैसे यहाँ की एक स्टोरी थी सर। ये उस समय सर हमारे सबसे एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे जो कि मगध पे राज्य करते थे। मगध के राजा, क्या नाम था उनका? मगध के राजा जब भगवान बुद्ध थे, जो राजा बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। तो हुआ क्या था सर, तो 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात है, 5th सेंचुरी BC में मगध के राजा बिंबिसार, इनकी राजधानी राजगृह थी और ये हरेंग वंश के जो है ना संस्थापक हैं। इन्होंने अपना महल से निकल के और भगवान बुद्ध को दिया बैनुवन। तो बैनुवन में भगवान बुद्ध रुके थे, जहाँ की बैम्बू ट्रीज आज भी देख रहे हैं हम। और यहाँ भगवान बुद्ध हैं और मगध के राजा बिंबिसार। और ये देख रहे हैं सर महिलाओं का कितना सुंदर आभूषण पहन के भगवान बुद्ध को सुनने के लिए, और उनके आजू बाजू में बैठी हुई महिलाएं आप देख रहे हैं सर। देख रहे हैं ऐसी सब धोती पहनना तो आज भी नववारी स्टाइल है सर। देख रहे हैं ज्वेलरी हाथों में, गले में। जब द्वारपाल इतना पहनते थे सर तो रूलर्स और ट्रेडर्स के पास काफी कुछ होता था। कहते हैं कि इनकी एक जो बेटे थे जिनका नाम था अजातशत्रु, कहते हैं कि अपने पिता से ही अगेंस्ट थे वो और अपने पिता को ही राजगृह के कारागार में डाल देते हैं। और कुछ इतिहासकारों ने तो अजातशत्रु को पितृहंता लिखा है। और जब भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, एक सभा में उन्होंने प्रवचन देते समय कहा कि जो अपने माता पिता की अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो हमारा साधक बन भी नहीं सकता। तो अजातशत्रु को तो लगा कि मेरे को तो लोग पितृहंता कहते हैं। वो भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा साधक बना था। और जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था तो एक हिस्सा पवित्र अस्थि का अजातशत्रु का भी जो है ना कहना था, एक हिस्सा तो हमारा भी बनेगा 8 भागों में से जो है, चाहे वो शाक्य को मिले, कोलियों को मिले, नागों को मिले, अजातशत्रु को तो मिलना ही चाहिए। तो उस समय ये हो गया था ना सर कि एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया था भगवान बुद्ध के जाने के बाद कि भगवान के शरीर को ले जाने के लिए शाक्य भी तैयार थे, क्योंकि भाई हम तो शाक्य हैं और हमारा सबसे पहला अधिकार है। लेकिन नहीं, कुशीनगर के मल्ल कहते हैं कि जब आनंद से भगवान ने कहा था कि हमारा कुशीनगर ही इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण होगा, तो हम ये बॉडी यहाँ से क्यों ले जाने दें? भाई जो लड़ाई में जीतेगा, लोगों का ये मत था, वो लेके जाएगा। लेकिन आनंद भी थे उस समय, महाकश्यप भी थे, द्रोण ब्राह्मण भी थे। वो कहते हैं भाई हम तो भगवान बुद्ध के साधक हैं, हम तो अगेंस्ट जा ही नहीं सकते उनके विचारों के। एक काम करते हैं, पवित्र अस्थियों का बंटवारा हो जाएगा। तो कहा कि भाई बचे हुए शरीर का जो एसेस है उसमें उनको भी दिया जाएगा, कश्यप को भी दिया जाएगा जो है ना। तो उस समय भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों में से एक हिस्सा इनके बेटे भी लेके गए थे जो राजगृह में स्थित थे। सर जी यहाँ देखिए, ये पहले ही शब्द क्या लिखा है सर? वाह, इसमें मात्रा विदिशा, विदिशा का नाम आया है। तो जो विदिशा के व्यापारी हैं जो कि नगर है, उन्होंने दिया इसको दान में। तो सर जी लास्ट में दा ना अम, दानम क्लियर दिखाई दे रहा है। सर जी यहाँ देखो ना, यही नहीं दिख रहा है आपको सर, हर नाम के पीछे दानम का जरूर एक कॉमन शब्द रिपीट मिलेगा। सर जी देखो ना, दा ना
दानम। और ये कौन सा है? ये जो पाली भाषा और लिखने की जो लिपि है ये मौर्यन ब्राह्मी है सर। और गुप्तों की ब्राह्मी देखोगे सर तो उनमें शैली बिल्कुल अलग हो जाएगी लिखावट। ये अर्ली सबसे पहली जो है ना उसी स्टाइल में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है पहला शब्द वाह है, इस पे जा आधा जा, बज गा उ गु ता सा, बज गुता से दानम। हर पत्थर में सर आप जो है ना यहाँ देखिए हना भिक्षुनी और लास्ट में दानम, हना भिक्षुनी दानम, यहाँ भी दानम आया। तो जितने भी आप स्टोन देख रहे हैं सर दानम जरूर लिखा होगा। लेकिन सर आप सोचेंगे कि हर दानम में तो आपको उल्टा टी दिख रहा है, लेकिन यहाँ सीधा टी क्यों दिख रहा है? क्योंकि सर जी ये 1912 की बात है, 1912 में जब सर जॉन मार्शल ने कुछ पिलर डैमेज मिली थी तो उनको फिर से ठीक किया है। तो उस समय जो है ना लगाने वाला जो है वो अच्छे से काम करता है, लेकिन भाषा की उसको पढ़ने का ज्ञान नहीं होता है। तो जब वो लगाता है तो ये अपसाइड डाउन हो जाता है। तो दानम जैसे शब्द उल्टे हो गए हैं सर। ये हो गया, वो भी एक इतिहास है सर, हम उसको नहीं बदल सकते हैं क्योंकि वो भी 100 साल से पहले लगाया है। कुछ नया नहीं होता है, सब कुछ बराबर है। ये देखिए सर, चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध की ये 4 प्रतिमाएं, मतलब हर डायरेक्शन में भगवान बुद्ध को एक मूर्ति से हम देख पाएंगे जो कि 500 AD का है, जो कि समय था हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश था जिसको हम गुप्त वंश कहते हैं। और गुप्त वंश की जो हमारे देश में उस समय की, चाहे वो मनुष्यों में मूर्तियां हो और चाहे लॉर्ड विष्णु के गुहा मंदिर हो, चाहे बिल्डिंग में मंदिर हो, चाहे जैनिज्म हो, हिंदू बौद्ध, सारी की सारी हमारी संस्कृतियों को गुप्त वंश ने बढ़ाया। तो यहाँ पे ये मानना है हमारा, ये जो मथुरा स्कूल से बनी हुई मूर्ति है, क्योंकि ये कला और ये पत्थर जो है वो मथुरा शैली का है। सर जी पीछे आप एक पिलर देख पा रहे हैं, ऐसे एक नहीं 4 पिलर थे सर यहाँ पे, और 4 पिलर पे रखा हुआ ये बड़ा सा जो स्लैब देख रहे हैं सर, ये बड़ा रूफ का काम करता था ऊपर से। लेकिन सर जी जो हमने कहा ना कि सांची ने सब कुछ देखा है, संपन्नता भी देखी है और वीराना भी देखा है, गवाह है 500-600 साल। तो उसमें वीराने में काफी कुछ क्षति हुई है। सर जी ऊपर देखो जितने भी स्तंभ है ये सारे ओरिजिनल हैं, और जो डैमेज हुआ था तो वो ASI ने लगाया, बिल्कुल प्लेन स्टोन लगाया। मतलब हमारे डिपार्टमेंट का आर्कियोलॉजिकल का ये रोल रहा कि उन्होंने कहा जो नया लगाएगा वो नए जैसे होना चाहिए और कार्विंग ओरिजिनल होना चाहिए। तो जहाँ जितनी जरूरत थी वहाँ संरक्षण होता है, और जिसकी जरूरत नहीं है वहाँ नया कुछ नहीं लगाया जाता। तो सर जी ये पूरा का पूरा स्तूप जो बना हुआ है 2nd सेंचुरी BC का स्टोन में है। पहले इसके अंदर 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था टेराकोटा ब्रिक से। 2nd BC में, 3rd BC में ही ये जो वेदिका बनी हुई थी सर, लेकिन लकड़ी की थी सर, ये पूरा का पूरा बैम्बू और वुड में था सर, लेकिन वो डैमेज हो चुका था। तो उस समय अग्निमित्र वसुमित्र जो कि शुभ काल में ही विदिशा रह के उन्होंने इसके सारे के सारे जो है ना लकड़ी के जैसे सारे स्तंभ स्टोन में उन्होंने देखे, और इंटरलॉक वैसे ही किया है जैसे कारपेंटर लकड़ी को लकड़ी में जोड़ता है, यहाँ स्टोन को स्टोन में जोड़ा गया। और ये वेदिका जो है इस स्तूप की सुरक्षा कर है। सर जी क्या होता था कि जब भी हम कोई फार्मिंग करते हैं तो सुरक्षा देनी पड़ती है सर। कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसकी आउटर वॉल बनाते हैं, अब लकड़ी की कटीली झाड़ियों से बनती थी, चलती नहीं थी, तो वही काम हम स्टोन में करने लगे। तो इसीलिए सांची स्तूपा माना जाता है कि जिसपे सुर्खी चूना का इस्तेमाल पहली बार हुआ, और जो ब्रिक्स में और हमने लकड़ी में काम किया वो सब कुछ स्टोन में करके गए। तो सर जी यहाँ देखो ऊंचे आसन पे भगवान बुद्ध बैठते थे, और एक पद्मासन मुद्रा है, ध्यान मुद्रा। सर जी पीछे औरा देख रहे हैं आप, ये जो है देख रहे हैं लोटस है और पीछे और सर्कल देखिए सर आप, सिमेट्रिकल बना ऐसा ही सर सर्कल वहां है, और ऐसी ही सर्कल में रेलिंग है, और ऐसे ही गोलाई में स्तूप है, और वैसे ही गोलाई में वेदिका है। सर कहते हैं ना कि हम उत्तर से जब दक्षिण को चलते हैं, और जो इसमें हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी, और इस ऑरा में है हम, तो वो लेके हम भी जाते हैं यहाँ से। तो हमेशा सर क्लॉकवाइज ही चलते हैं कि हमारे जो मैन जैसे कोई भी हमने मूर्ति को स्थापित किया है, क्या कोई भी हमने सिंबल को स्थापित किया है भगवान के रूप में, वो हमारे राइट हैंड साइड होना चाहिए सर। जी नीचे देख रहे हैं आप, जो है ना, तो ये भी दान करके दिया है सर, इनमें भी दानम लिखा हुआ है, सारे स्टोन डोनेटेड है। तो बड़ा रोल है सर जेम्स प्रिंसेप को पाली भाषा पढ़ने में। उन्होंने हर एक पत्थर को जो है ना इस पे पढ़ने की कोशिश की, और इसके बाद समय समय पे शोध होते रहते हैं। तो सर जी
ये हमारा एक रिसर्च का विषय है और यहाँ पर जो है ना ये खाली जो जगह होती थी, मेडिटेशन भी होता था और परिक्रमा भी होती थी प्रदक्षिणा पर। तो सर जी स्तूप के समय मूर्तियां नहीं होती थी, इसलिए मूर्तियों को हम अलग से ही देख पाते हैं कि अलग से एडिशन है, क्योंकि इसके साथ नहीं बनी थी। 3 काल में मौर्य, शून्य, सातवाहन काल, बीसी में सब बन गया था, ये 80 में आया। सर जी यहाँ देखो भगवान बुद्ध की ये जो बॉडी में जो माथा है, फिर से हमने एक्सकेवेशन करके ESI में जब जब जरूरत होती है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन करते हैं, मॉडर्न से मिडिवल, मिडिवल से एंशिएंट। जो भी सर रिसर्च होगी तो पहले से ही शुरू होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नीचे तक जाएंगे, तो जो मॉडर्न होगा सबसे पहले मिलेगा, एंशिएंट होगा सबसे नीचे मिलेगा। तो एक्सकेवेशन में मिला है, तो इनको इन्होंने ESI ऑफिसर ने फिर से वहाँ पे जो त्यों स्थापित कर दिया सर, क्योंकि ओरिजिनल मिल गया। अगले वाला मिलेगा तो वो भी जोड़ा जाएगा। देख रहे हैं सर, तो ऐसी भगवान बुद्ध की वाणी सुनने के लिए देखो सर एक सुंदर सी गिलहरी बैठी हुई है, वो भी बड़े ध्यान से सुन रही है कि क्या बातें चल रही है। सर जी ये होता है। तो यहाँ पे अच्छा 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 क्या चाहिए, अच्छा लो आजा आजा जल्दी इधर आ, आज कुछ नहीं मिला खाने को। तो सर जी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के शरीर पे एक पतला सा कपड़ा होता है जिसको हम चीवर कहते हैं। देख रहे हैं आप ऊपर उश्रीष देख रहे हैं आप, जो माथे और ध्यान मुद्रा में है, यहाँ पे पद्मासन मुद्रा में है। तो सर होता क्या था कि भगवान बुद्ध तो बड़े प्रैक्टिकली इंसान थे कि हमारा जीवन तो 2500 साल पहले सोचा कि इच्छाओं में भरा हुआ है, इच्छाओं में, और इच्छा ही दुख का कारण है। तो इच्छाएं तो कभी किसी की खत्म होती नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने जीवन को मध्यम मार्ग, बैलेंसिंग लाइफ तो होना चाहिए। जिस दिन बैलेंस बन गया वही हैप्पी लाइफ है। तो कहते दिन भर दौड़ धूप करोगे तो थकान होगी, तो कुछ समय तो अपने लिए ध्यान में देना ही चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए योग और सम्यक वाणी, सारी उनकी शिक्षाएं हैं। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा ही है ध्यान जो है ना, मेडिटेशन। और आज तो कितनी जरूरत है सर, सारे इंसान जगत में, इस प्राणी जगत में तो सबको चाहिए मार्ग जो है ना। देख रहे हैं सर, तो अपनी पुरानी सारी की सारी संस्कृति में ही योग ध्यान साधना की शिक्षा है सर। देख रहे हैं सर, 2 गंधर्व हैं, 2 अटेंडेंट हैं यहाँ पे। तो ये सर जो मथुरा आर्ट है सर, देख रहे हैं सर, गंधार है कला की तो सर बात ही अलग है। और सर मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों की मैचिंग से ही सर। खैर आप ये देखो कितना फर्क है गंधार आर्ट में, मथुरा आर्ट में। देख रहे हैं सर ये जो है ना, तो सर जी यही है इन दोनों कला में जो है ना, बहुत जो है ना हमारे लिए। ये देखिए सर, वो तो ऐसा है कि जाकी रही भावना, जैसे कहते हैं ना मूर्त जो है ना, वैसे ही हम बनाते हैं। जैसे हमने कोई अगर मूर्ति मथुरा स्कूल से बने, कोई गंधार स्कूल से बने, कोई अमरावती से बने, या कोई चाइना से बने, तो उन सब में जो है ना अलग अलग जो है ना उनके चेहरे के भाव दिखाई देंगे। उनके जीवन की मुद्राओं पे भी होता है कि हम क्या शो कर रहे हैं यहाँ। हम वो शो कर रहे हैं कि जब भगवान ने भोजन का त्याग कर दिया, शरीर सूख गया, तो एकदम उनके शरीर को जो है ना हम एकदम पसलियाँ और एकदम कमजोर वीक बॉडी में देखते हैं। लेकिन जब वो भोजन कर लेते हैं तो उस समय अलग होता है, उपदेश देते हैं अलग होता है, ये महापरिनिर्वाण मुद्रा अलग होता है, भूमि स्पर्श मुद्रा अलग होता है। तो ये तो ध्यान वाली मुद्रा है जो है ना। तो उनके जीवन की मुद्राओं को कल्पना नहीं है ये मूर्तियां। जो लोग कहते हैं कि भाई जिसने बुद्ध को देखा वो मूर्ति बनाया नहीं, और बोले जिसने बनाया उसने देखा नहीं, तो बोले तो कल्पना है। बिल्कुल कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। जैसे उनके जीवन की शिक्षाएं थी वो लोगों ने फॉलो की, और जो लोगों को देखा वो मूर्तिकार ने वहाँ दिया है। तो उस समय तो ऐसे ही ट्रांसफर होता था सर फ्यूचर के लिए, है ना सर। तो जी हाँ देखिए आइए, जी हम हमेशा सदन के हमारा जो है ना, जिसमें हमें अपने 4 शिव मूर्ति दिखाई देते हैं, जो कि हमने सारनाथ से हमारा नेशनल एम्बलम है, 4 शिव मूर्ति यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है सर। 2000 साल पहले ना तो ये सीढ़ियाँ ऊंची और ना इसमें स्पेस कम, देख रहे हैं आप। और हमें सपोर्ट के लिए बराबर रेलिंग दिखाई दे रही है आप यहाँ। कटिंग हमने सर इसी पार्ट को ओपन किया। कैसे पता चल रहा है हमें सर, इसमें हमें जो ओरिजिनल 2nd BC का प्लास्टर नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है सर। ये लगभग 1 फुट, लगभग 12 इंच का प्लास्टर था सर पूरे पे। लेकिन जब ये ओपन किया तो वो अलग स्टोन दिख रही है, अलग उभरे हुए। तो सर एक बात है कि तरबूज का एक पीस काट के देखा तो कैसा दिखा है अंदर, तो ऐसे ही अंदर से कट करके देखा तो अंदर इसका फॉलो नहीं है, सॉलिड है। तो टेराकोटा ब्रिक वाला जो इसके अंदर स्तूप है वो यहाँ से ओपन करके देखा, इसके अंदर और एक और स्तूप है। फिर ये दूसरा वाला 2nd सेंचुरी BC का है, और इसी दिशा से जो है ना ये सदर्न गेट है सर। सम्राट अशोक रिवर फेसिंग इसी दिशा से आते थे सर। जी यहाँ देखिए
जब कुशीनगर में वो प्रॉब्लम होने लगी कि कौन लेके जाएगा बॉडी, देख रहे हैं आप, तो सारे के सारे लोग तीर धनुष लेके तैयार खड़े हैं कि भाई जैसे ही अगर बात नहीं बनी तो फिर अपने शक्ति के दम पे ले जाया जाएगा भगवान के। लेकिन समझौता बन गया सर। तो सर वो देखो उस राजा के हाथी पे और राजा के हाथों में अम्ब्रेला के साथ सम्मान असली अपने देश ले जा रहा है, अपना झंडा लगा के। तो एक राजा उस कोने में पहुंच गया था, वो भी छतरी लगा के अपना साथ सम्मान लेके जा रहा है। कुछ उस दिशा के राजा चले गए और कुछ इस दिशा के राजा चले गए। देखो एक तो यहाँ तक पहुंच पाया अपने कलश लेके यहाँ पे, देख रहा सर, एक यहाँ भी था। तो सारे के सारे राजा जो है ना, इधर से उधर से उधर सब लेके जा रहे हैं पवित्र अस्थियां। देखो ये यहाँ है सर, ये लेके जा रहा है, ये रखा हुआ है। देखो छतरी होगी वहाँ पे सब पे सम्मान से जी। वहाँ देखो छतरी तो इस हाथी के ऊपर भी है, क्योंकि ये भी तो एक बोधिसत्व हाथियों के राजा 6 दांतों वाले हाथी थे। 6 दांतों वाले हाथी है बोधिसत्व से जी। ऊपर देखो ना, यहाँ पे स्तूप में ये भी दानम लिखा है कि चारों गेट सातवाहन ने आनंद के नाम से दान किए से जी। वो सिद्धार्थ का देखो गृह त्याग, जब वो घर छोड़ के अपने कंठक और अपने सारथी के साथ अम्ब्रेला के साथ जा रहे थे, महाभिनिष्कृत, देख रहे हैं सर। और बाकी इसमें स्तूप और एंट्रीज बुद्ध एंड मानुषी बुद्धों के बने हुए हैं सर, देख रहे हैं इसमें 3 स्तूप और 4 वृक्ष से जी। यहाँ से इतनी जगह इसलिए ओपन होती थी क्योंकि यहाँ से परिक्रमा करने जाते थे, है ना सही है सर जी। ये देखो सर, आजकल तो ये हो गया सर, 2000 साल पहले उनके हम आर्किटेक्चर स्टाइल की बात कर रहे हैं, इसमें भी सर दानम लिखा है। मतलब आजकल की बनी हुई रेलिंग में से न्यूज आती है कि कोई बच्चा नीचे से या ऊपर से गिर जाते हैं। 2000 साल पहले देखो सर, ना तो ऊपर से यहाँ से कोई बर्ड्स भी नहीं निकल सकते सिर्फ हवा पानी आने के लिए। तो कितनी सुरक्षा से उन्होंने बनाई है जिस मोनेस्ट्री का। ये जो मोनेस्ट्री है हमारी, इनका जो सिलेक्शन है सर, ये देखिए विंध्य पर्वत, देख रहे हैं विंध्याचल रेंज, शिखर पे बनाया क्योंकि ये प्लेटू है सर, देख रहे हैं आप। और शिखर पे क्यों बनाए जाते थे महल और मोनेस्ट्रियां और मंदिर? ये एकांत में इसलिए बनाए जाते थे ताकि शांति बनी रहे, और महल बनाए जाते थे सुरक्षा बनी रहे, नगर से ज्यादा दूर ना हो और नगर के ज्यादा पास ना हो। सर ज्यादा दूर हो जाएगा नगर से तो फिर कौन आएगा यहाँ पे साधना करने और शिक्षा लेने, और ज्यादा पास में हो जाएगा तो वो शांति और डिस्टर्बेंस होता रहेगा। तो लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे नगर है, और 1 किलोमीटर पहाड़ी के नीचे बेत्रवती नदी बेतवा है। उस नदियों का तो हमारी संस्कृति में और दुनिया की संस्कृति में सबसे बड़ा सर जी। यहाँ देख रहे हैं आप, इन पहाड़ियों के पीछे भी स्तूप है सर, उधर भी है, इधर सतधारा के तो उधर सुनारी, पीछे अंधेरो मुड़ेल को। अगर सर सांची से 20 किलोमीटर भोपाल साइड और 20 किलोमीटर विदिशा साइड काफी मोनेस्ट्रियां हैं। तो सर विदिशा एक केंद्र था, विदिशा के आगे ग्यारसपुर के मंदिर, उदयपुर के मंदिर, बड़ो पठारी, येरन, और प्रॉपर विदिशा के पास उदयगिरी, हेलियोडोरस, प्रॉपर विदिशा में बीजा मंडल, सांची। तो ये जैनिज्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का केंद्र था सर यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच, और कर्क रेखा का पॉइंट भी सर इधर से ही गुजरता है। तो नीचे सर वो मोनेस्ट्री होती थी, बिल्कुल नालंदा पैटर्न, नीचे विहार होती थी। तो अशोक सम्राट जो है स्तूप, स्तंभ, विहार, चैत्य जरूर बनाते थे। ये देखो ऐसा नहीं सर कि पैनल और तोरण का फ्रंट ही हो, रियर भी देखो सर आप। और इंटैक्ट तो ज्यादातर अंदर साइड ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर हमें गैदरिंग बाहर से होती है। और अंदर से देखिए सर, वही कुशीनगर का महल जहाँ मल्ल राजाओं का राज्य था, वहाँ उन राजाओं को एक एक अम्ब्रेला के साथ बुलाया गया, भाई स्त्रियों का बंटवारा करना है। तो कुशीनगर के लोग हाथियों के सामने खड़े हैं, वो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चाहिए तो सब तो है सर जी। ये देखो ना, अगर हम एक फ्लाइंग लाइन देखें सर, देख रहे हैं ग्रिफिन तो है सर, ये देख रहे हैं आप, ग्रीक लोग आने की वजह से ऊपर चक्र भी था सर। यहाँ पे कुशीनगर में अस्थियां लेके आ गए हैं आफ्टर दाह संस्कार शरीर का, फिर उनको इनवाइट किया है। फिर ये धम्म चक्र बुद्ध के टीचिंग का है। नीचे देखो ना सर कि भगवान बुद्ध के ध्यान करते समय राइट साइड से जो अटैक किया था वो मारा था, नहीं चाहते थे मार की भगवान बुद्ध बन पाए,
डिस्टर्बेंस है। और सर हम जब कोई भी रास्ता चलते हैं तब बहुत सारे विचार आते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव, वो हमें पता नहीं होता। एक रास्ता को मन भटकाने के लिए कि भाई राजपाट छोड़ के आए हो, कोई ऐसा मान के यही नहीं, इसकी तुम खोज करो। एक मन कहता है कि जरूर कोई रास्ता है। तो भगवान बुद्ध को कई बार हमारे जैसे लोगों द्वारा टेम्पटेशन नहीं किया गया था, तपस्या की। यहाँ देखना सर, जहाँ जहाँ तक आप देखोगे सांची के पूरे इस क्षेत्र में, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, ये फीलिंग आपको बराबर आएगी सर। सिर्फ अप्रैल मई जून लगभग 2 से 3 महीने ये सब ड्राई दिखाई देता है, लेकिन बाकी समय एकदम बढ़िया है। क्लाइमेट एकदम अल्टीमेट सर। ये देखो आप, जो हम प्लास्टर देख पा रहे थे नीचे से, ये देखो सर, पहली बार जो हमारी सबसे एंशिएंट धरोहर में पहली बार लाइम मोटर का यूज किया था। नहीं तो इससे पहले मिट्टी और टेराकोटा ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। तो सजी सोचो आप कि 2000-200 साल पहले का प्लास्टर आज भी जमा। अगर ही बीच में ईरान नहीं होता, जंगल नहीं होता, तो सजी काफी कुछ हमारे लिए बिल्कुल मिलता। सजी ये देखो आप, 1868 की बात है जब हम इस धरोहर की इस चीज में देखिए सर, 1868 का फोटो है सर, कैसी कंडीशन में था सर ये हमारा धरोहर। देखिए सर, जब हम पकी हुई ब्रिक्स बनाने लगे तो वो मौर्यकाल के ब्रिक्स हमें काफी मिलते हैं सर। टाउन प्लानिंग तो अपनी, जैसे अपना कालीबंगा एक्सकेवेशन, राखीगढ़ी एक्सकेवेशन, लोथल एक्सकेवेशन, तो काफी बहुत प्राचीन समय से नगर व्यवस्थाएं हमारी सामाजिक सांस्कृतिक तो हमने ब्रिक्स का इस्तेमाल मौर्यकाल में किया था। काफी बड़ा ब्रिक होता था, लेकिन दोबारा हमने जो स्टोन में बनाया वो आज भी तो पहली बिल्डिंग है जिसमें हमने लाइम मोटर का यूज किया है, जिसको हम कहते हैं ना सर, पत्थर का पाउडर, सुर्खी, चूना, गोड़, गोंद, बेलफल, उड़द की दाल, मेथी, भिंडी, हनी, बतासे, जो भी चीजें चिपकती थी उनको हम पाउडर में और फिर लिक्विड में, इसे जब हम लोग कंजर्वेशन करते थे तो जंगल के जो बेल फूल होते ना ये कम से कम 4 महीने पहले तोड़वा लेते थे जब उसमें फल आते थे। और फिर जब कंजर्वेशन करते थे तो उसको पानी में कई महीनों तक गला के रखते थे। फिर उसमें से जो उसका गम निकलता था, जो उसकी गोंद निकलती थी, फिर हम उसको मिलाते थे और फिर पीसते थे। सुर्खी, चूना सब उसमें मिलाया, जैसे आज सर हमने जैसे यहाँ काम किया, ये जहाँ माइनर कुछ बारीकी से काम होता है, तो हमने क्या किया सर, हमने पत्थर का पाउडर बनवाया, उसमें हमने आज टेक्निक में एरोलाइट, और जगह जगह पे वहाँ पर भी हमने कोई माइनर जगह है तो वहाँ तो ज़्यादा सुर्खी नहीं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ऊपर शिखर पे बुद्ध के पहले संदेश का प्रतीक धम्म चक्र सबसे ऊपर देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आप? हाँ। बुद्ध का पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बिल्कुल ऊपर, लेकिन ये जो है ना आधा जो है ना डैमेज हो गया है। दोनों साइड 2 अटेंडेंट खड़े होते थे, दोनों साइड त्रिरत्न थे, एक डैमेज हो गया सर यहाँ का, देख रहे हैं आप? त्रिरत्न, ये ग्रिफिन है, स्पाइरल जैसे स्क्रॉल है सर, देखो एलिफेंट, बोधी देख रहे हैं वृक्ष के पास है, इसके नीचे हॉर्स राइडिंग करने वाले सर, अगर हम बैक साइड में देख रहे हैं ना सर, रियर, अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि शरीर एक है और चेहरे 2 हैं उनके, देख रहे हैं? धर्म और दुनिया दोनों को देख रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। देखो सर, बोधी ट्री के नीचे सुजाता खड़ी है, ये भगवान बुद्ध को खीर खिला रही है, लेकिन खीर नहीं खाते। तो सुजाता कहती है कि तुम बीड़ा के तार उतना ही खींचो जिसमें स्वर निकले, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, ढीला छोड़ोगे स्वर ना निकलेंगे। सुजाता उनको खीर खिला रही है। देखो यहाँ पे यक्षों की सभा है, 3rd पैनल में मेडिटेशन करते हुए बेसंतर बोधिसत्व दिखाए गए हैं। और से जी ये जो है ना, उस जमाने में ये जो हाथी चलाने वाली महिला के रूप में देख रहा है, महाउत लेडीज हम देख रहे हैं, और ये दोनों साइड सालभंजिया की मूर्ति थी सर। इनके पैर जरूर सर ठीक किए गए हैं इसमें, देख रहे हैं सर, काफ़ी क्षरण हो गया था, इसमें काम हुआ है कंजर्वेशन। कई महामाया देवी है, देख रहे हैं लोटस पे बैठी हुई 2 गज के साथ। महामाया ने तो स्वप्न में हाथी देखा था, भगवान बुद्ध हाथी के रूप में ही उनकी कोख में आए थे, तो उनके जन्म का
अच्छी तरह से बोल रहे हैं, नरेशन अच्छा चल। हाँ, और सर जी ये जो आप जब इसकी सर ये जो है ना चलते हुए बहुत अच्छा आता है सर, ये जो है ना इसकी रेलिंग जो बनी हुई है। और सर आप तो एक ऐसी जगह में है, ये बड़ी जागृत प्लेस है सर ये। सर ये जब अर्ली मॉर्निंग में जब ये लोगों का ना फोन का ना ये आने जाने वालों का नहीं होता है, जब हम ही लोग होते हैं करेक्ट, तो या फिर वही साधक होगा जो यहाँ साधना के लिए आया है। सर वो समय की एक बात देखिएगा, सनराइज पे आइए आप, वो साधक लोगों के लिए है ये जगह, वो मॉर्निंग का टाइम, बाकी फिर पब्लिक के लिए है ये जगह सर। लेकिन सुबह की साधना अलग ही एनर्जी देती है सर। ये देखो हमने कहा था ना सर कि भगवान बुद्ध की सभा में चाहे वो एनिमल्स हो और चाहे वो शेर बफेलो के साथ क्यों ना बैठे हो, प्रॉब्लम ना है सर किसी को। पीछे शेषनाग देख रहे हैं, पीछे सर गरुड़ और नीचे नाग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन सब उनके पास है। देख रहे हैं आप, ये पक्षी फ्रूट्स लेके आए हैं, ये कपल देखो ये डबल हम्प कैमल राइडिंग करते हुए, ये तीसरे में स्तूप की प्रेयर हाथी करते हैं, पीछे देखो गोट राइडिंग करते हुए। देख रहे हैं आप ये जो कपल है ग्रीक वेशभूषा में, उससे 2000 साल पहले का एक हेयर स्टाइल तो देखो सर, ये जो पहने हुए साड़ी की देखो सर, नौवारी पहने हुए आभूषण देखो, खड़े होने की स्टाइल देखो सर। इन महिला के पैर टच होने से ट्री भी फ्रूट देने लगता है। मदर से बेबी या ट्री से फ्रूट एक न्यू टाइम आता है, वो यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंबल। फर्स्ट में तो वो 7 वृक्ष बनाए हुए बुद्ध और मानसिक सर। देखा जाए भगवान बुद्ध ने रिसर्च कि हमने कौन से वृक्ष के नीचे तब उन्होंने शुरू किया, लेकिन तब करते करते उन्होंने वही वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया। सर कहते हैं ना आपके साइंस की भाषा में कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है बोधि वृक्ष, जिसको हम पीपल का ही वही है सर, पीपल का। तो इसलिए सर हम क्या करते थे सर, पहले परिक्रमा किसकी करते थे सर। आज हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, स्तूपों की। हम पहले वृक्षों की परिक्रमा करते हैं, हम पहले नदियों की परिक्रमा करते हैं, इन सारी चीजों की। आइए सर, तो हम पूरा ज्यादातर मॉन्यूमेंट में सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है सर। और सैंडस्टोन का उपयोग इसलिए किया गया है सर क्योंकि वो हमारा लोकल पत्थर था और उस समय हमें कार्विंग करनी थी। तो देखो साउथ में देखें तो वहाँ का मटेरियल उन्होंने ज्यादातर, हमें बहुत सारे मंदिरों में ग्रेनाइट भी मिलता है, ये अपने यहाँ सैंडस्टोन मिलता है। तो साउथ में नॉर्थ में अलग अलग शैलियाँ रही हैं, अलग अलग मटेरियल में बना है सर। ये देखो ना, अगर लगे कि पिलर की बनाने की जो शैली है, जो बड़ा सा चैत्य बना था प्रार्थना हॉल, ऐसा तो नहीं था। थोड़ा सा सर वो कॉलोजियम बड़े बड़े जो है ना उनके थिएटर होते हैं, अपने यहाँ सर प्रार्थना के लिए चैत्य होता है। और सर चैत्य के दोनों कॉर्नर में, राइट साइड में भी मंदिर था सर, ये अवशेष ही है, उसके बेस बचा है। लेफ्ट साइड में भी खाली है। फ्लैट रूफ मंदिर बनाने की कला है सर। सबसे पहली कला फ्लैट रूफ है। सबसे पहली स्ट्रक्चरल टेम्पल में आता है सर ये नंबर 17 सांची का ये जो मंदिर है। तो गुप्त काल में ये मंदिर का निर्माण हुआ सर। और यहाँ पर जहाँ पर हम मूर्ति रखते हैं तो एक प्रकार से वो हमें चैत्य भी कहलाता है, जहाँ पर हम ध्यान करते हैं। तो ये जो चैत्य है यहाँ पर, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति तो आज नहीं मिल रही हमें देखने को, लेकिन पहले जो है ना यहाँ पे मूर्ति जरूर होती थी सर। यहाँ पे जो है ये जो यहाँ जो हम देख रहे हैं सर, ये आसन बना हुआ है और यहाँ बुद्ध देव की मूर्ति है। देख रहे हैं, फ्लैट रूफ टेम्पल है, सबसे पहले रहा होगा उस समय। आज जरूर हम खाली देख रहे हैं सर। यहाँ देखो, ये देखिए सर, ये था वो ग्रीक शैली में बना हुआ चैत्य। तो यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा मंडप लकड़ी का था। आज भी कॉलम देखिए सर, कितने हाइट वाली कॉलम यूज किए हैं। तो सर वही मैंने कहा कि अपना देश कंट्री ऑफ कल्चर। ये देखो सर 44 स्तूप है, ये अनदर भिक्षु मॉन्क्स लोगों के। सर स्तूप भी ऐसे होते थे कि भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां जहाँ रख दो वो शारीरिक स्तूप होता था। कुछ जगह भगवान बुद्ध के उपयोग किए हुए सामान रख दो, पार्भौमिक स्तूप होता था। कुछ सर लोगों के छोटे छोटे लगे ना सर, वो भगवान मेरे तो सारे काम पूरे हो गए, मन्नत पूरी हो गई, मनोती स्तूप भी बनते थे सर जी। 50 फीट हाइट के लगभग 42 का तो ये पिलर ही था और इसमें चारों गर्जना करते हुए 4 शिंग थे सर। यहाँ ये पिलर डैमेज हुआ सर, यहाँ से वो देखो सामने सर पड़ा हुआ है। ये कहते हैं ना जमींदार ने अशोक स्तंभ को तोड़वा दिया था सर। अशोक स्तंभ को डैमेज करने के पीछे कहते हैं कि उसकी जरूरत थी शुगर के जूस मशीन बनाने की। देख रहे हैं सर, जूस
मशीन शुगर केन देखा रोलर बनाने के लिए यहाँ से इधर डैमेज करवा दिया सर। आज भी सम्राट अशोक का लिखा हुआ आधा अधूरा जितना मिला वो लेख को उसने सेट कर दिया है ताकि जो ओरिजिनल जगह पे लगा रहे। इसके ऊपर के 4 शेर म्यूजियम में है। और सर जी यहाँ तो दिख ही रहे हमें जो है ना सदन गेट, और बाकी ये नया पत्थर है ना सर, इसलिए तो उस पर कार्विंग नहीं है सर। कार्विंग इसलिए नहीं है, मार्शल ने लगाया, और जितनी भी कार्विंग है ना सर ये सब ओरिजिनल है। देखो सारनाथ के डियर पार्क में भगवान बुद्ध ने पहला धम्म उपदेश दिया था। यहाँ पे देखो सर यक्ष हाथ में मालाएं माउथ से फ्लूट बजा रहे हैं। बीच में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की अस्थियां कुशीनगर वैशाली से लेके आते हैं। और फर्स्ट वाले में माया देवी ने स्वप्न में हाथी देखा था। तो सर घोड़े हाथी वो महिला यहाँ पर भी तो थी सर, जैसे उन गेटों में थी। यहाँ की सर काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं क्योंकि सदन गेट सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त पड़ा था। सर कहते हैं कि जब स्तूप खुलवाया था उस समय मिसिंग हुआ है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जब वो पिलर तोड़वाया था तब गिर गया होगा, क्योंकि अगर ब्रिटिश काल में अगर गिरता ना तो उसके पुराने पीसेस को बराबर ज्यों का त्यों लगा देते। पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि वो से सुरक्षा के साथ करते थे एक्सकेवेशन में, पता था कि हमें इस चीज़ की रिसर्च में ही काम करना है। तो मेरे को लगा कि अशोक पिलर तोड़वा दिया, उस पर गिर गया तो फिर लोग अलगे लोग उठा ले गए, कोई जितना मिल पाया वो लगा दिया उन्होंने। तो सर जी ये देखिए कि सांची के जो 4 तोरण हैं, चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आते हैं। सर जी ऐसा नहीं कि सारे तोरण द्वारों में कंप्लीट स्टोरियाँ ही हों, इसमें कुछ डेकोरेशन भी है सर। यहाँ पे देख रहे हैं सब मिथिकल एनिमल्स बने हुए हैं सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इधर है, ये सारे देखो इसमें काफ़ी मिक्स होता है। एक कोई एनिमल नहीं होता इसमें, गरुड़ जैसा भी बना देते हैं, हॉर्स जैसा भी बना देते हैं, लाइन जैसा भी बना देते हैं, सिंगल हॉर्न यूनिकॉर्न जैसा भी बनाते हैं सर। फिर ये 4 यक्ष होते हैं जो कि इसका टीचर ये जो बौने आप देख रहे हैं ना सर, सिर पे भार उठाते हैं। इनके चेहरे में कितनी खुशी है सर, ये लाफिंग है ना सर, हैप्पी है ना सर। इनकी प्रॉब्लम किसी शरीर में नहीं है कि भाई कोई वीक हो कमजोर हो, सब प्रॉस्पेरिटी वाले लोग हैं सर। कितने खुश हैं सिर पे भार उठाते हुए। ये बड़े दुखी हैं सर, ये थोड़े चुप हैं, एक रोते हुए हैं। चारों के 4 यक्ष भार उठाते हैं सर। कोई तो अपने काम से खुश है तो कोई काम से चुप है। तो सर हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोगों के जीवन में है, हंस के उठाएं तो भी भार उठाना है, चुप रह के उठाएं तो भी उठाना है। उठाना तो है ही, तो क्यों ना हैप्पी रहें, भार उठाएं हैप्पी से, क्योंकि क्राइंग और एंग्री वाले को भी उठाना है। यहाँ पे देख रहे हैं सर आप, ये पार्ट इसका रिस्टोर्ड है, यहाँ पे न्यू है सर। ये देखो एक समय की बात है, 80,000 मंकीज गंगा रिवर के पास मैंगो पार्क में रहते थे, और पके हुए फल इनके जो कि नदी में गिरते जा रहे थे, और शिकार करने गए बनारस के राजा ब्रह्मदत्त को इन फल की प्राप्ति हुई, और उनकी तलाश में राजा पूरी सेना लेके गए और आम के वन पे अटैक कर दिया। तो उस समय क्या हुआ कि बंदरों को मारते देख बंदर का राजा नदी पे ब्रिज बन गया, और जगह कम पड़ रही थी तो अपने पैर को दूसरे ट्री से बांध दिया, और एक एक करके सारे मंकीज को बचा के ले गया। कहते हैं कि सारे बानर को तो बचा ले जाते हैं, लास्ट में प्रॉब्लम होती है जब जब उनके कजन ब्रदर देवदत्त हाई जंप लगा के निकलते हैं तो महाकपि की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, झाड़ के नीचे गिर जाते हैं, और राजा उनको पकड़ लेता है। और राजा कहता है कि बानर आप राजा थे इनके, सबको तो बचा ले गए, लेकिन ठीक राजा नहीं हो, अपने आप को नहीं बचा पाए। बोले महाराज प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, वो मैंने किया, आपको भी करना चाहिए। तो राजा समझ गया ये कोई बानर नहीं, खुद बोधिसत्व थे। ये बोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं, ये गिर गया था, रिस्टोर्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं सर जी, जैसे हम यहाँ देखें ना थोड़ा सा, इस पे एक ही चीज रिपीट की है, जैसे टॉप पैनल इसमें हम देख रहे हैं ना, स्तूपास एंड ट्रीज। तो 3 स्तूप होते हैं और 4 ट्रीज होते हैं। इसमें 7 बुद्ध होते हैं, इसमें बुद्ध और मानुषी को। इसमें भी इसे देख रहे हैं ना, वो ईगल जैसे वो ग्रिफिन आता है। और सर सेकंड में तो सारनाथ दिख ही रहा है कि जहाँ डियर पार्क होगा तो डियर तो होंगे। बुद्ध के फर्स्ट उपदेश सुनने में सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ एलिफेंट की प्रेयर करते हैं। यहाँ पर भी सर वही हैप्पी क्राइंग यक्ष दिखाए गए हैं, उसमें सीन्स ऑफ द एंजॉयमेंट्स देख रहे हैं कपल, और ये गिर गया था सर रिस्टोर्ड है। सर जी जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है सर, उसमें अच्छा था बिहार, यहाँ पे देव वाटर, यहाँ आप जी देख रहे हैं सर, ऐसे इस पूरी हिल में 7 वाटर टैंक है सर, ताकि सीजन में यहाँ रहेगा, विंटर तक ये खत्म होगा तो नीचे समर तक रहेगा, और बेतवा नदी है ही पीछे सर। तो सर ये बिहार के ट्रिपल अम्ब्रेला। तो फर्स्ट अम्ब्रेला है हमारी भगवान बुद्ध के ज्ञान का, बुद्धम शरणम गच्छामि। सेकंड है उनके टीचिंग धर्म का, धम्मम शरणम गच्छामि।
और सबसे बड़ा नीचे है सर हमारे मजबूत संघ का, संगम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध के ज्ञान का और उनके दिए हुए रास्ते हमारे लिए धम्म का, और हम सबका मजबूती से पालन करना एक संगठन का बहुत जरूरी है। 3 छत्र हैं सर ऊपर और ये अपना स्तूप बना हुआ है अर्धगोलाकार गुंबद। तो डोम आर्किटेक्चर की हमारी शुरुआत है ये सर। तो हमारे ही देश की डोम बनाने की शैली जो है ना स्तूपों में ही आई है सबसे पहले। उससे पहले सर गुंबदें नहीं बनाई जाती। फिर बाद में हमने धीरे धीरे करके जो केव्स के अंदर बनाया, फिर हमने फ्लैट रूफ टेम्पल बनाए, फिर नागर शैली शिखर वाले बनाए, फिर गुंबद आर्किटेक्चर आया। तो तब तक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी आया है। तो हमारे बिल्कुल सॉलिड होते थे डोम जो है। तो स्तूप भी तो डोम है सर पूरा। तो सर जी बड़े हैं बुद्ध, जिनकी ऊंची साधना थी, बड़ा स्तूप है। फिर उनके बाद आया उनके शिष्य सारीपुत्र और अरहंत महामोदगलायन। तो अरहंत सारीपुत्र महामोदगलायन की जो पवित्र अस्थि यहाँ से मिली हमें एक्सकेवेशन में, फिर हमने इसको दोबारा बनाया है सर। अस्थियां तो निकल गई, ब्रिटिश म्यूजियम चली गई और फिर 1952 में वापस आ गई। वापस आई तो नया मंदिर बाहर चैत्यागिरी विहार बना। सांची टेम्पल के नाम से जाना जाता है वो चैत्यागिरी विहार। वो बौद्ध मंदिर है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, मंदिर में प्रेयर होती है। अब उसी मंदिर के नीचे लॉकर है जिसकी चाबी यहाँ के कलेक्टर साहब के पास होती है, और वो चाबी आती है नवंबर में 2 ही दिन के लिए। जब सांची मेला लगता है, तहखाना खोला जाता है, पवित्र रस्सियां निकलती हैं, चीफ गेस्ट के सिर पे रखी जाती है, उनका पूजन होता है। ओनली ईयरली 2 डेज, नवंबर का आखिरी संडे सैटरडे, इसलिए क्योंकि ओपनिंग हुई थी टेम्पल की लास्ट संडे नवंबर में, तभी एनिवर्सरी मनाते हैं। तो बाहर वाला जो चैत्यागिरी विहार है श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी मेंटेन करती है, और बाउंड्री के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ से अस्थि मिल गई। एक ही अम्ब्रेला है क्योंकि वो संघ में आए थे। संगम शरणम बुद्धदेव आज भी इसी में है। सर ये देखो श्रीलंका से ज्यादा लोग आते हैं, तो श्रीलंकन लैंग्वेज है सिंघाली, ताकि वो इससे पढ़ सकते हैं। और सर हम इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाएंगे तो दोनों सिंबल होंगे, ये यूनेस्को का होगा और बाकी सांची स्तूप होगा। और जो नेशनल हेरिटेज है उसमें ये सिंबल तो होगा ही, क्योंकि एएसआई के मोन्यूमेंट में एएसआई का लोगो लगेगा। वो क्या है, सांची का स्तूप। बिल्कुल देख रहे हैं सर, ट्रिपल अम्ब्रेला, हर्मिका, डोम और गेटवे, और साथ में लगा है हमारा सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम सारनाथ भी। तो सांची सारनाथ मिला के एएसआई ने अपना लोगो बनाया है सांची स्तूप। We have heard a very beautifully explained, very nicely explained all the details, and I am sure, like I am thanking him, all of you will also say, great thing. He has given us a great knowledge. He has given us good idea and good information about all the things here. So we should thank him, and I thank you also for giving me a patience hearing. Goodbye, good luck, and take care. See you in next video. Till then, this is Dr. Anil Joshi, logging off.